سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ سیاہ درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 12. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشد کریم آپ کیسے ہیں؟ سوال عرض یہ ہے کہ مدرسۃ المنہ بالغان میں جو اسلامی بھائی پڑھتے ہیں تو ان کی استقامت نہیں رہتی، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کھانے پینے کے علاوہ کسی کام میں استقامت نظر نہیں آ رہی. اچھے میں اچھا کھانا چاہیے اور بار بار چاہیے، اس میں بڑی استقامت ہے. 100% کامیاب حلقہ میں اسی کو بولتا ہوں. باقی دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں شیطان بہرحال کھینچمدانی کرتا رہتا ہے، مقابلہ سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی مدد حاصل کرے اور دل لگے یا نہ لگے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھے پڑھائے اور دیگر نیکیوں میں بھی اپنا دل لگائے. ایسا کون سا انداز اپنائے جو ان کو اسلامی بھائیوں کو استقامت نصیب ہو جائے؟ فضائل بیان کرے. اگر وہ غیر حاضر ہو تو اس کو یاد دلائے، فون کرے، اس سے ملاقات کرے، تو اس طرح وہ انشاءاللہ آ جائے گا. شرمندہ ہو کر ہی آ جائے گا، مروت میں آ جائے گا. چلو یہی صحیح. پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ وہ ترغیب کا معاملہ جاری رکھے، یعنی کہ وہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو کہ آنا ہے تو آؤ، نہیں تو میں دوسرے کو پڑھاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ اسی پر انفرادی کوشش کرتا رہے. اس طرح بھی استقامت کا سامان ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب دیجئے. یہ انعام والے سوالات ہیں. جواب وہ دے گا جن کا 72 میں سے کم از کم 63 مدنی انعامات پر عمل ہے. طلبہ کرام کے 92 ہوتے ہیں، 92 میں سے 72، اور اگر کوئی خصوصی ہے 27 میں سے 19 سوالات پر عمل ہو تو وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. استلام کسے کہتے ہیں اور یہ کب کتنی بار طواف میں کیا جاتا ہے؟ رحمت علی اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فضائل مدینہ، درجہ سادسہ. 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام کرنا ہوتا ہے. اور استلام کی بہتر صورت تو یہ ہے کہ جب طواف کی ابتدا کی جائے تو حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ استلام ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو چھڑی لگا لی جائے، پھر اس کو چوم لیا جائے. اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھوں کو چوم کر طواف کا آغاز کیا جائے. کیوں طواف کے شروع میں کیا جائے گا، جب طواف مکمل ہو جائے گا تو پھر کر کے پھر شروع کیا جائے گا. کیوں اس طرح 7 چکر اور 8 مرتبہ استلام کیا جائے گا. ہاتھ کس طرح اٹھائیں گے؟ اپنے ہاتھ کا اشارہ کا، ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر پھر ان کو چوم لیا جائے گا. اتنی حد تک مطلب یہ جواب کو درست مان
लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज करता हूँ किस तरह करना है। ये नहीं, कानों तक हाथ उठाने, ठीक, जैसे नमाज में उठाते अपने कानों तक हाथ उठाए, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये हाथ उठाकर ये पढ़ना है, फिर हाथ बढ़ाकर इशारा हाजिर अस्वद को, फिर चूमना है। ये भी इस्तिलाम है। और वो हाजिर अस्वद को चूमना, वो दो हाथ रखकर और इस तरह आवाज पैदा ना हो, इस तरह यही पढ़कर चूमे। छड़ी लगाना तो छड़ी जाने भी नहीं देंगे, ले भी नहीं जानी चाहिए। इतना अजदाम होता, भीड़ होती है कि किसी को लग सकती है आंख वगैरह में, तो शायद वो ले भी नहीं जाने देंगे, छड़ी रिस्की है। तो ये अब वो वहाँ चूमना भी मतलब बहुत दुश्वार, बहुत रश होता है। वो आला हज़रत ने मना फरमाया, न दूसरों को खुद दबाए न खुद दबे। तो वही इस्तिलाम दूर से ही आफियत है। तो जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। वैसे काबा शरीफ पर पहली नजर में भी और जब जब नजर पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर दुआ मांगे, कबूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दीजिए, कोई किसी के नाम सलाम भेजे तो किन अल्फाज से उनका सलाम अर्ज करे। अच्छा, अब यह कि अब तक 53 हफ्तावार मदनी रसाइल में से कम 50 पर 50 का मुताला कर लिया हो। अगर कोई हज पर या उम्रे पर जा रहा है तो उसको कहें कि मेरा जो है वो सलाम अर्ज़ कर देना, तो उसको जो है वो सलाम इस तरह अर्ज़ करना है कि शाहज़ेब ने आपको सलाम अर्ज़ किया। माशाअल्लाह। तो आपका नाम भी आपने बता दिया। जवाब दुरुस्त है। इनको दोनों को तहफ़ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बापा जान, सबसे पहले तो आपको प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री जो आपने शरफ़ हासिल किया, वो उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। मेरी ख्वाहिश ये थी कि बाबा सबसे पहले आपको मुबारकबाद मैं पेश करूँ कि सब ने आपको हज मुबारक का, तो मैंने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़री के ज़रिए मैंने मुबारकबाद पेश की। और दलील बापा इसकी अर्ज़ ये करूँगा कि आला हज़रत का शेर कि उनके तो फ़ेल तो हज भी खुदा ने करा दी, असले मुराद बंदगी, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। तो इसलिए आपा मेरी ख्वाहिश ये थी कि सबसे पहले आपको मदीने पाक की मुबारकबाद यहाँ मदनी मज़ाक में मौजूद मैं आपको पेश करूँ। अब मेरा सवाल ये कि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बापा जो हदीस पाक के अंदर अमल करने का कहा गया है, तो बापा इसके अलावा भी कोई और अमल है? मुख्तलिफ सीगे लिखे हैं किताबों में। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अल-वज़ीफ़तुल करीमा में आला हज़रत के मामूलात में, आला हज़रत का रिसाला नहीं है ये, इनके शहज़ादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान ने आला हज़रत के मामूलात जमा किए, उसमें एक दुरूद शरीफ लिखा हुआ है। वो आला हज़रत ने ये फरमाया कि उसमें ये लिखा है कि ये सबसे ज़्यादा, जिसको ये कहते हैं कि तीर बहदफ, पावरफुल है। कई दुरूद हैं उसमें, अगर दुरूद शरीफ पढ़े तो ये ना कि मैं पढ़ूंगा तो ज़ियारत होगी, पढ़े ताज़ीम अक़दस की नीयत से, आगे उनका करम बेहद बेइंतिहा। ये लिखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी खिदमत में ये कि जादू के ज़रिए किसी पर जिन्नात का मुसल्लत कर देना, इसकी हकीकत इरशाद फरमा दीजिए। मुमकिन तो है ये कि वो जादू के ज़रिए कोई बला डाल दे किसी पर, मुमकिनात में से है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि डराना नहीं चाहिए, ऐसा कहना कैसा? डराना नहीं चाहिए। जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक नाम है सिफाती नज़ीर, ज़ाल से। नज़ीर के माना है डर सुनाने वाला। और डरेंगे नहीं तो फिर काम बनेगा नहीं। कि डरने वाले का तो बड़ा फ़ायदा है कुरान करीम में, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें। तो ये बाज़ लोग जो बिल्कुल गाफिल किस्म के लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि यार ये दावत इस्लाम मेरे डरा देते हैं। अब मुश्किल है, डरते ही तो नहीं है, डराते तो है लेकिन कहाँ डरते हैं भाई। नमाज ना पढ़ने में ये अजाब है वो अजाब है अगर ये बयान किया गया तो डरेंगे तो पढ़ेंगे ना, तो कहाँ डरते। अल्लाह अपना डर और खौफ नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा 12 माह के लिए कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। बापा इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि 12 माह की तमाम नेकियों का सवाब आपके हमशीरा को इस साल सवाब। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इस्तकामत की दुआ। अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। फनाई मस्जिद के अंदर जिसमें खाने वगैरह का इंतज़ाम भी होता है, तो हुज़ूर उस जगह पे दौड़ना, तेज़ चलना, इसके बारे में शाह फरमाइए। अव्वल तो मस्जिद के अंदर आईने मस्जिद यानी इस तरह चलना, तेज से मुराद ऐसा तेज चलना कि जिससे पाँव की आवाज़ पैदा हो, मना है। वरना ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल मरियल की तरह, मरीज की तरह चलने का भी तो कोई तुक नहीं है। दरमियाना चाल से आदमी चले और वक़ार के साथ। तो बहरहाल लेके तेज चलना या धमक पैदा हो ऐसी आवाज़ से चलना ये मना है, इसको गुनाह नहीं लिखा। फनाई मस्जिद की बात कर रहे बिनाए मस्जिद में दौड़ते हैं, आकाम और भी हल्के हो जाएंगे। अब ये अलग बात है कि इसमें अगर हुकूकुल इबाद तलफ होंगे तो वो तो गुनाह उसका तो अपनी जगह पर है। यानी कि किसी को बेजा धक्का मार दिया और कोनी मार दी और झाड़ भी देते होंगे और यूं पकड़ के खींच लेते होंगे, ये तो सब बदतमीजियाँ, बद अखलाकियाँ, इसमें दिल आज़ारियाँ भी हो सकती हैं और गुनाह की सूरतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन मुतलक़न इसको हम ये नहीं कहेंगे जो भी इसमें शामिल है वो गुनाहगार है। हो सकता है कि ये बेचारा धक्का मार नहीं रहा हो, किसी ने उसको धक्का मारा हो और दूसरे पे आ गिरा हो, अभी इसको क्या हुक्म लगेगा। जैसे तवाफ में और इस तरह होता है कि वो धक्का पील में, अब वो किसी को धक्का लगा तो वो घूर के देखेगा गुस्से में आकर कि इसने धक्का मारा। अब बेचारे ने इसने धक्का नहीं मारा होता, 4 आदमी और होते हैं जो उसको धकेल चुके होते हैं, इसकी वजह से वो अगले को लगा होगा, वो बेचारा बचते बचते भी उस पर पड़ा होगा तो फंसेगा ये। जरा अगला तो देखते नहीं हो, अंधे हो, इस तरह मुझे कुचल दिया तुमने, हालांकि बेचारा आंख वाला होता है, पीछे से उसको धक्का आया होता है। तो इसलिए एकदम से हम किसी को गुनाह का हुक्म ना लगाएं, मुतलक़न हम बचने का कहें कि धक्कम पील ना कीजिए, कि ये मतलब गैर मुहज़्ज़ब तरीक़ा भी है और गुनाहों की सूरतें इसमें पैदा हो सकती हैं, ये कहा जाए। ताज़ियत करनी थी उसको, 3 दिन से तो ज़्यादा हो गए। आप मदीना छोड़ कर आए, उसकी भी ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला फिर आपको भी और हम सबको आपके साथ मीठा मीठा मदीना दिखाए। इसमें भी आमीन, इसमें क्या 3 दिन का हिसाब है तो नहीं, वो मैयत में सिर्फ। फिर इसमें ताज़ियत तो हमारे यहाँ बोल देते हैं ताज़ियत, लेकिन ताज़ियत का अकाबिरीन में कोई रवाज हो इसका ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। गम तो होता है, गम होता है, हर गम जो है ना वो आदमी के लिए परेशान को नहीं होता। बाज़ गम बहुत खुशगवार होते हैं जिनमें गम मदीना है। सुभान अल्लाह। देखो वैसे कोई गम मांगता नहीं है, गम मदीना मांगते हैं, गम रमज़ान का सवाल करते हैं, है ना। तो
हर गम बुरा नहीं होता। गम तो खैर यूं देखा जाए तो आम तौर पे कोई भी गम बुरा नहीं है। गमगीन दिल की तो बड़ी फजीलत है, लेकिन बाज गम ऐसे जैसे गुनाह, अच्छा गुनाह हो गया इस पर गम करना कि हाय मुझसे गुनाह हो गया, ये गम भी बुरा नहीं है, ये भी आखिरत बनाने वाला गम है। अल्लाह नसीब कर दे तो नसीब वाले के लिए। बहरहाल ये कि अब वो मदीना छूट गया, इस पर 3 दिन से ज्यादा हो गए तो खुद ही गम हल्का हो जाता है। मदीना जब छूटता है उस वक्त गम ज्यादा होता है। अब ये भी सबको नहीं होता, जिसको होता है उसको होता है। बाकी तो हंस बोल रहे होते हैं और मतलब वो फोन करते होंगे कि ये डिश मेरे लिए तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ, क्या और क्या मंगवाना है, मैंने गुड्डू के ये ले लिया, पुप्पू के लिए ये लिया है, और क्या चाहिए। इस तरह ज्यादातर माहौल इस तरह का होता होगा। एक दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है कि जो गम मदीना का एक नाम सुना और मदीना छूटने पर गम भी होना चाहिए, ये शुद्धबुद्ध पैदा हुई। वरना जनरल पब्लिक में ये देखा नहीं जाता, बहुत कम। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि दावत इस्लामी वालों के अलावा मैंने किसी को इस तरह मदीने की जुदाई पर गमगीन होते हुए देखा हो, याद नहीं पड़ता। बापा चल मदीना कर दे, आपके साथ मदीने जाएंगे, गमे मदीना भी नसीब हो जाए काश काश इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल आपकी बारगाह में ये अर्ज़ है कि अगर कोई शख्स कोई गुनाह करता हो, उसमें बचने की कोशिश भी करता रहे, मगर फिर हार मान जाए, फिर कोशिश करे, फिर हार मान जाए। मिसाल के तौर पे बदनिगाही की उसकी आदत है, बचने की कोशिश भी कर रहा है मगर नहीं बच पा रहा है, तो उस गुनाह करने का मतलब वो फेल करने का उसको गुनाह मिलेगा? धर गुनाह किया तो गुनाहगार तो होगा, जबकि अपने कस्द व इरादे से उसने गुनाह किया। अगरचे बचने की कोशिश है, बचने का ज़हन है, करना नहीं चाहता, लेकिन इसने किया, गुनाहगार तो होगा ना। चोरी करने का ज़हन नहीं है, चोरी को पसंद भी नहीं करता, बहुत बुरा समझता है, लेकिन ऐसा माल सामने आ गया कि मन ललचा गया और हाथ मार दिया और छुपा लिया, गुनाहगार तो होगा ना। अगर जब ये समझ रहा कि मैं गलत कर रहा हूं तो चोरी तो की ना इसने। यही बदनिगाही या दूसरे गुनाहों पर इसको कयास कर लिया जाए। पापा दुआ फरमाए तमाम आज़ा का मजबूत कुफले आमीन नसीब हो आमीन जाए। आमीन। ये हल है इसका गुनाह से बचने का। ज़बान का, आँखों का। दोज़ख की कहाँ ताब है कमजोर बदन में, हर उज़्व का अत्तार लगा कुफले मदीना। आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद बहादुर अली अत्तारी मुल्तान शरीफ से। पापा 19 इस्लाम भाई फुई माँ की ताज़ियत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ज़िलहिज्जतिल हराम की 28वीं, तो पापा हो सकता कल आखिरी रात हो। तो पापा साल गुजरने वाला है और गफलत में गुजर गया साल, अब नया साल आने वाला है। पापा नया साल किस अंदाज से गुजारें, कोई नेकियां करने का अंदाज, कोई ऐसा पापा कोई शफ़क़त फरमा दीजिए, कोई ऐसी नज़र डाल दीजिए कि इबादत में दिल लग जाए, तक़वा मिल जाए, परहेज़गारी मिल जाए, दिल की स्याही दूर हो जाए, सख्ती दूर हो जाए, मदनी काम करने वाले बन जाएं। आमीन। माशाअल्लाह, आप जो 19 इस्लामी भाई इतना सफ़र करके तशरीफ़ लिया है ताज़ियत के लिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये अपने जो लम्हात रह गए ज़ुल्हिज्जा के, वो भी ज़ाहिर अल्लाह की इताअत में गुजारने और गुनाहों से बचकर गुजारने, और बाद में नया साल आएगा वो भी अल्लाह करे कि हमारा नेकियों से शुरू हो और ख़त्म भी नेकियों पर हो, वो गुनाहों से हम बचकर हैं। तो इसके लिए कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे तो नेकियों में इंशाअल्लाह बढ़ोतरी जारी रहेगी। तो अच्छी सी नियति भी करें कि अब सारा साल मदनी काफिलों में हर महीने 3 दिन सफ़र करूँगा, मदनी इनामात रोज़ाना इसका फ़िक्र मदीना के ज़रिए पुर करके हर महीने पूरा महीना ख़त्म होते ही 1 तारीख को जमा करवा दूंगा, और जो जो मदनी कामों में मेरी कोताही थी
اب یہ نئے سال میں نہیں ہوگی. اس کے لیے اس طرح نیتیں کر کے اپنے کو نیکیوں پر آمادہ کیا جائے. اگر نعوذ باللہ گناہ ہوئے ہیں تو ان سے سچی توبہ کی جائے کہ اب انشاءاللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے مغرب کی آخری نماز امام کے ساتھ پڑھی اور باقی 2 رکعتیں کس طرح پڑھے؟ اب جو یہ دوسری رکعت پڑھے گا تو اس میں قراءت کرے گا اور تشہد بھی کرے گا. تشہد بنا التحیاتوں میں بیٹھے گا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. اس کو بھی پر پڑھے گا, سورہ فاتحہ وغیرہ اس میں بھی پڑھے گا اور قد اخیرہ کرے گا. سلام کر دے گا. آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے. جب بھی رات میں سوتا ہوں بہت ڈر لگتا ہے, عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں. سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو 21 ٹائم یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں. اللہ آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے کہ فنائے مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنا کیسا؟ فنا مسجد میں اعتکاف کی نیت کی حاجت نہیں ہوتی, البتہ یہ کہ فنا مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب. میرا نام سید نعمان اتاری ہے. ڈویژن سوز مرشد کے مدنی انعامات کی ذمہ داری آپ کے صدقے میں ملی ہوئی ہے. کابینہ رضوی. باپا سوال یہ عرض کرنا تھا کہ جیسے اب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اذان دینے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ بہت کم گھروں میں دینی ماحول کی ترکیب ہوتی ہے. اب جس کو چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں مگر گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں فرد کہ اذان دے, اب وہ ہوا بھی بعض اوقات فجر کے ٹائم اگر ہو گیا, اب کوئی مل نہیں رہا, تو اس صورت میں اگر وہ اپنے پیر صاحب کی آواز میں ریکارڈ ہوئی ہوئی اذان اس بچے کے کان میں سناتا ہے تو یہ کرنا کیسا؟ جائز تو ہے, لیکن وہ اذان کی جو مستحب ہے وہ ادا نہیں ہوگا ریکارڈڈ اذان سے. صلو علی الحبیب. غلام مصطفیٰ اتاری UAE دبئی سے. پاپا میرے آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ وہ حضرات جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بہت بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ان سے ہم یہ حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے, حتیٰ کہ آخری عمر میں جو وہ بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں اس میں وہ شکوہ شکایات بھی کرتے رہتے ہیں اور بے صبری کا اظہار بھی کرتے ہیں, تو کیا اس وجہ سے کیا ان کا وہ ثواب یا وہ ضائع ہو جائے گا؟ حسن ظن تو سب کے بارے میں رکھنا ہے, چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو, کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا, اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت کرے گا. لیکن ہم جزم نہیں کر سکتے, ڈن نہیں کر سکتے کہ یہ بخشا گیا, تو ہم کو پتہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں یہ بھی ڈن نہیں کر سکتے کہ یہ دوزخ میں گیا. بڑے سے بڑا گناہ گار ہو, اس کے بارے میں ہم کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دے. ہم کو اچھے جملے بولنے چاہیے کہ اپنا جو بھی مردہ ہے, حدیثوں میں بھی ہے نا کہ اپنے مردے کو بھلائی کے ساتھ یاد کرو, اس کے عیب نہ بیان کیے جائیں. اب گلے شکوے جیسے ہاں کہ بعض گلے شکوے کفر بھی ہوتے ہیں, کہ اللہ پر اعتراض کیا نعوذ باللہ تو کافر ہو جائے گا, جبکہ ہوش و حواس میں. محمود اتاری زمزم نگر حیدرآباد. آج الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں ہمارے ڈویژن سے 150 سے زائد اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر ہفتے الحمدللہ ڈویژن کے اندر تقریباً 8 مقامات پر جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی ترکیب ہے. ماشاءاللہ. ایک بار الحمدللہ دوبارہ کہہ لیں. الحمدللہ سمجھ میں آیا میرے. الحمدللہ. الحمدللہ. اور پیارے باپا جان نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل
महीने में एक मरतबा मदीनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह यहाँ बाबुल मदीना तशरीफ़ लाए के इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आया करेंगे। और प्यारे बापा जान अल्हम्दुलिल्लाह कहने की अब मश्क करेंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सगे अत्तार मंदूर अत्तारी इटली से हाजिर हुए हैं आपकी बारगाह में, मुर्शिद करीम की बारगाह में। अल्हम्दुलिल्लाह इटली से भी तकरीबन डबल 11 इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं। उसके अलावा हमारे ग्रीस के इस्लामी भाई भी स्पेन से भी आए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मक्की काबिनात में हैं। माशाअल्लाह। आसिफ अतारी यूके के शहर लेस्टर से हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल 23 साल से अतारी हूँ, लेकिन बहुत अरसे बाद बारी यही है। तो चंद इस्लामी भाइयों ने मैसेज में आपको सलाम पेश करने के लिए बोला, लेकिन आप बोल दीजिए सलाम। वो ज़ाहिर मैसेजेस में और चंद नाम है, और आपको कैसे सलाम उनका पेश किया जाए? जिसने आपको सलाम कहा है उनका सलाम कबूल कर लो, यूं कह दीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिसने मुझे आपको सलाम पेश करने के लिए कहा, आप उनका सलाम कबूल कर लीजिए। अलैका व अलैहिमुस्सलाम जज़ाकल्लाहु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सगे अत्तार मोहम्मद उस्मान अत्तारी ग्रीस यूनान से हाजिर हुआ हूँ। काबीना सतह पे मदनी नामात कारकर्दगी 12 मदनी कामों की और मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की जिम्मेदारी है माशाअल्लाह। और इस हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ग्रीस काबीना में 3575 इस्लाम भाइयों ने रिसाला पढ़ने सुनने की सादत हासिल की माशाअल्लाह। और मुस्लिम बहनें भी शामिल हैं इसमें? नहीं, सिर्फ इस्लाम भाई हैं। प्यारे बापा चान मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी बिलाली ममालिक के युगांडा से अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की सआदत हुई। मेरा ये सवाल है कि हम जो बैरून ममालिक में इस्लामी भाई रहते हैं, ये अपना वक़्त किस तरह वहाँ पे गुजारें और क्या क्या एहतियातें करें, बराए करम इस पर हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा दें। हर एक को अपना वो जदवल बनाना चाहिए और अपने वो रिसाला अनमोल हीरे, काश इसके मुताबिक कोई तरकीब बन जाए कि सुबह क्या करना है, इतने बजे क्या करना है, उतने बजे क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, कब दुरूद पाक का विर्द करना है, कब मदनी इनामात के ताल्लुक से फिक्र मदीना करनी है। ये सब अपना अपना जदवल हर एक को बनाना मुफीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद जमील अत्तारी शाफ़ई ज़ोन यूके से हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन हमारे यहाँ रूटीन ऐसी है कि हफ्ते में 3 या 4 दिन पढ़ाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी अरसे से, साल से तो डेफिनेटली ज़्यादा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों 2 मदरसातुल मदीना बराए बालिगान पढ़ाने की अल्हम्दुलिल्लाह सआदत हासिल हो रही है। सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ाते हैं? कहाँ पर आप? जी बाबा ब्रेडफोर्ड यूके में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 2 मदरसातुल मदीना। माशाअल्लाह। अच्छा, ये भी पढ़ाते हैं। चलो भाई, आप में से जवाब देना है। जवाब शायद आसान है, लेकिन आपके यहाँ इससे वास्ता कम पड़ता हुआ लोगों को, तो आज के उमूमी मदनी मुज़ाकरा, वो जो ऊपर हुआ था उमूमी था, अब ये कौन सा है? जवाब दीजिए। उमूमी मदनी मुज़ाकरे में इगवा यानी किडनैप से हिफाजत का क्या नुस्खा बयान किया गया? मोहम्मद यूसुफ अत्तारी स्पेन से, या हाफिज़ु या हफीज़ु, और इरशाद फरमाया था वज़ू करते वक्त या क़ाद। ये पूरा तो नहीं है, या हाफिज़ो या हफीज़ु, क्या करना है? एक बार दिन में किस वक्त भी एक बार पढ़ देना, एक बार पढ़ना है जी। मदनी तरबियत गाह के हवाले करना पड़ेगा। 11 बार पढ़कर दम करना है। आखिर दुरूद पाक। और ये आपने इरशाद फरमाया था कि जब वज़ू करें तो हर उज़्व को धोते वक्त या कादिरो का विर्द करें। या कादिरो जी, एक बार भी पढ़े तो काफी, हर उज़्व धोते वक्त। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है।
इनको अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के इस हफ्ते जो रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई है, इसकी जो जुमा मुबारक की तहरीर है, ये इंशाअल्लाह ताला जिस किताब पर है आंसुओं का दरिया, ये इंशाअल्लाह इनको तोहफे में दी जा रही है। जवाब दीजिए। बारह माह से हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत जो इस सारे बतौर महरम आए हैं, तुर्की के जिन आशिकान रसूल की मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की तामीर में जो एहतियातें थी, आप किसकी वो महरम के तौर पे आए हैं? मैं यूके बर्मिंघम जो मस्जिद नबवी की तमीरात का काम करते वो सारे के सारे उफाज कराम थे, और वो जब मस्जिद नबवी की तमीरात कर रहे थे साथ में कुरान पाक की तिलावत करते थे। जो भी उन्हें कोई चीज़ काटनी या करनी हो वो मदीना पाक की हदूद से बाहर लेके जाके उसको काटते थे, और जब उन्हें अगर हथौड़ा या कोई ऐसी इस्तेमाल करना पड़े उस पर रबड़ रख के या फिर रबड़ का हथौड़ा इस्तेमाल करके आवाज़ ना पैदा हो। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ये तकरीबन जो मैंने कहा ये इन्होंने दोहरा दिया। माशाल्लाह इन इस्लामी भाई को भी अमीर अहले सुन्नत की तहरीर जो अमीर अहले सुन्नत रिसाला अता फरमाते हैं, तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीर वाली किताब है जन्नत में ले जाने वाले आमाल, ये इंशाअल्लाह इनको तोहफे में दी जा रही है। पापा ये कितने दिन तक मुताला इसका? तो चलो दोनों को पढ़ने की इजाजत है। और बोलो। पापा जी ने शफकत फरमा दी, तोहफे ही 2 दे दी। चलो आपको 2 तोहफे में दे देता हूँ, लेकिन ये किताब एक ही है ना, वो तीसरी किताब भी यही बची है इस वक्त। आपको मैं रियाल दे देता हूँ, 2 रियाल एक एक। पापा इंशाल्लाह ये मैं 63 दिन में जो ना किताब का मुताला कर लूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अता